Hello everyone, welcome to Pro Journeys Primavera Oil and Gas Demonstration. I'm Ashish Kumar Sharma, your host for today's session. Let me give brief introduction about who we are. Pro Training is a CI.co.in Ahmedabad funded upskilling platform for construction professionals and students. We are also backed by USA Embassy, NSRCL, IM Bangalore, Startup India, and 20 plus top ones. We understand learning skills requires sticks which precisely fit market demand is tougher than landing a job itself. That's where we came into play. We prepare engineering students to be industry ready by helping them trained and mentored by industry professionals and experts whose industry backed practical knowledge. As of now, we have upskilled 15,000 civil engineers and 700 plus companies and 4,000 plus colleges across India and 12 plus countries. We aim to make you expert in structural engineering, construction management, bridge engineering, metro and tunnel engineering, etc. to software trainings like Primavera, ETAP, AutoCAD, and other 40 plus programs for your 360-degree holistic development. We recently conducted an industry-ready program on property valuation, Power BI, Primavera billing, and QF EPAM and Tekla. And with good results in the sessions has motivated us to go beyond our boundaries and get more for all of us. To be updated with our upcoming amazing courses, go and follow our Instagram, Facebook, and LinkedIn by the name ProTraining. Now I would like to introduce our expert, Sagar Garg, who have joined our forces to make everyone industry ready. Now I request Sir to please start the session. Thank you. Thank you, Ashish. Yes, good evening, everyone. This is Sagar Garg. I'm a mechanical engineer with having 15 to 16 years of experience in the field of oil and gas, refineries, petrochemicals, chemical industry, solar, thermal power plant, etc. Today, I would like to give you the demo session on oil and gas, chemical plants, and LNG also, a little bit of LNG also on Primavera. So, we will start with our presentation. Hello. Yes, yes. Just wait. Yes. So I'll tell you about the what is project. Hello. Can you please, Abdul Jalal? Can you please mute your? Yes. We are starting from introduction to project. So I'll tell you, a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. It implies a specific time frame, a budget, unique specifications, working across organizational boundaries. इट मीन्स प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, हम ये डेमो सेशन कर रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। इसका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, हाफ एन आवर। इसका कोई बजट भी होगा, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन भी होगी, जो कि इस प्रेजेंटेशन के तौर पर आई एम प्रेजेंटिंग यू ऑल। और इसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री होगी जिसके तहत हम इस चीज को कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज वाई इट इज रिटन अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसकी स्टार्ट और फिनिश डेट होती है, which is undertaken to create a unique product, or it gives to the stakeholders. For this point of view, as an example,
You people are the stakeholders who are looking after this presentation and who are understanding what exactly the project management of Primavera is, right? So we will go to the next slide. This is introduction to project management. So this project management is a sequential execution of several activities to achieve specific target with respect to time, quality and cost. सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन क्यों कहा गया है यहाँ पर? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी कोई स्टार्टिंग स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6। तो हम जैसे एक प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है, या जैसे ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बात करता हूँ, तो उसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे, मतलब प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटर करेंगे उसे, फिर कंट्रोल करेंगे। तो इसी तरीके से एक्टिविटीज हमारी चलती हैं। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्वालिटी एंड कॉस्ट। इसमें टाइम होता है स्टार्ट फिनिश, क्वालिटी होती है प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी है, और एक कॉस्ट होती है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोजेक्ट, राइट? द नेक्स्ट इज एक्टिविटीज आर मल्टी डिसिप्लिनरी। अलग अलग डिसिप्लिन की एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। हाँ, and is under all these disciplines, various WBSs are also there. So then several internal and external agencies are involved. Agencies, which type of agencies? Like PMC, project management consultant. Like कोई प्रोजेक्ट है, कोई जैसे मान लीजिए रिलायंस ही ओनर है, रिलायंस एक ओनर है, उसने अपने एक पीएमसी हायर की, बेक्टेल समझ लीजिए, एक्सटर्नल एजेंसी है वो एक। उसकी इंटरनल एजेंसी खुद की रिलायंस इंजीनियरिंग है, रिलायंस की, तो उसकी इंटरनल एजेंसी रिलायंस इंजीनियरिंग हो गई और एक्सटर्नल एजेंसी बेक्टेल हो गई। तो इस तरीके से, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एजेंसीज आर इन्वॉल्व। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ऑल द एजेंसीज एंड डिसिप्लिन्स टू अचीव स्पेसिफिक टारगेट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा क्या करता है? अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात करें प्राइमावेरा, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पुट्स all the agencies data, PMC, EPCM and discipline mean to say civil, mechanical, electrical, instrumentation, whatever, to achieve specific target. When all these agencies and disciplines work together, give their inputs to the project management, then one project is made, which we called here as agencies and disciplines to achieve specific target. तो हमारा जो टारगेट है, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करना, वो पूरा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट है एक, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। तो प्लानिंग में हमारा आता है डेवलप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम अपने सहूलियत के हिसाब से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वी आर मेकिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑफ इक्विपमेंट जॉब। इक्विपमेंट जॉब मीन टू से फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट फैब्रिकेशन होगा, फिर उसके बाद क्या नाम है, इरेक्शन होगा, फिर उसके बाद उसका कमीशनिंग होगी। इस तरीके से हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किसी भी पार्ट में हो सकता है, वो किसी डिसिप्लिन में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इसकी इक्विपमेंट की ही बात करूँ, तो इक्विपमेंट में स्टैटिक इक्विपमेंट, रोटरी इक्विपमेंट होते हैं। स्टैटिक के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, रोटरी के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे स्टैटिक में आप वेसल मान लीजिए, रोटरी में आप पंप्स मान लीजिए। तो ये WBS ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेवलप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो हमारा सबसे मेन पार्ट है। आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। वेरियस एक्टिविटी में मतलब हमको क्या क्या उसके अंदर डालना है, कौन क्या क्या चीज करनी है। जैसे पाइपिंग में है, पाइपिंग हमने हमारा एक WBS है पाइपिंग। पाइपिंग के अंदर हमने फैब्रिकेशन करना है, स्पूल फैब्रिकेशन करना है, इरेक्शन करना है, वेल्डिंग करनी है, चिपिंग करनी है, फिर उसकी क्वालिटी चेक करना है। ये एक्टिविटीज होती हैं जो कि परफॉर्म की जाएगी उस पाइपिंग जॉब को पूरा करने के लिए, राइट? देन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। whatever jobs, activities or work breakdown structure is made, we will assign a responsible person like project manager, or manager will assign any engineer, piping engineer or erection engineer, equipment engineer, whatever. So we will assign the responsibility to perform the activities written above. Then allocate resource and cost. Resource, there are three types of resources: labor,
non-labor, and material. Under labor, staff and all manpower. Can you please, whosoever is unmuted, please mute your. Yes, thank you. So allocate resource and cost means हमारी मैन मशीन मटेरियल इस तरीके से समझिए आप. मैन मशीन मटेरियल, लेबर, नॉन लेबर और मटेरियल बोथ आर सेम. लेबर क्या हुई हमारी? स्किल्ड लेबर हुई, अनस्किल्ड लेबर हुई, स्टाफ हुआ. ये ये हमारी रिसोर्स नहीं तो कोई मटेरियल हुआ, जैसे स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चरल स्टील हुई, पाइप्स हुए, फिटिंग्स हुई, ये सब हमारा रिसोर्स के अंदर आता है. और उसकी कॉस्ट हम क्या व्हाट वी डू, वी टेक द रिसोर्स, पुट द कॉस्ट एज पर द मार्केट and then go ahead. So that is why this is called as planning. These 4 points covers the planning part. Then it comes to the scheduling. Under scheduling, we assign time estimates. As per our experience or as per whosoever is working, as per his experience, he or she will estimate the time for completion of that particular activity. कि 10 इंच का पाइप वेल्ड होना है, वो कितने टाइम में वेल्ड होगा, वेल्डर कितने टाइम में वेल्ड करेगा. या फिर अगर हम स्केड्यूल बना रहे हैं प्राइमावेरा P6 पे, तो प्राइमावेरा P6 की कोई भी होगा क्लाइंट या ओनर या कुछ भी, वो हमको दे विल प्रोवाइड द स्टार्ट डेट. when we know how to work on Primavera, how to make a schedule on Primavera, we put all the WBS activities, resources, their cost in the Primavera, and then schedule it. Then Primavera automatically gives the finish date and automatically calculate the cost of that project. That is called the assigned time estimates. Then we go to the specify their sequence and interrelationship. Specify their sequence. What does it mean? Sequence means sequence of doing the activities. हमको एक इक्विपमेंट इरेक्शन करना है तो उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए, एंकर बोल्ट्स होने चाहिए, ब्लू लाइन चेकिंग होनी चाहिए, देन equipment fabrication, then equipment erection. This is called the sequence. और उनके अंदर इंटर रिलेशनशिप 4 तरीके की होती हैं. अगर हम प्राइमरी के केस में करें, लाइक फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश और फिनिश टू फिनिश. लाइक वी आर डूइंग equipment fabrication, pre-fabrication of the equipment. So whatever the activities go with respect to the pre-fabrication of the equipment, or whatever goes out of that, like finish to start. कि pre-fabrication finish हुआ तो हमारी start होगी next activity. नेक्स्ट एक्टिविटी खत्म होगी तो उससे नेक्स्ट स्टार्ट होगी. तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. एंड डेवलप नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम प्राइमावेरा ऑटोमेटिकली बनाएगा जब आप उस पूरे प्रोजेक्ट को प्राइमावेरा के अंदर डेटा इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके अंदर. उसमें हमारा नेटवर्क डायग्राम बनता है. नेटवर्क डायग्राम शो करता है कि कौन सी एक्टिविटी किससे लिंक है, कौन सी एक्टिविटी किससे रिलेशनशिप लगा रखा है उसमें. उससे हम डेवलप नेटवर्क डायग्राम कहते हैं. कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट होती है जब हम अपना सारा इनपुट, whenever we put each and every input to the Primavera, then it gives the project duration, the finish date, which includes the critical path also. Critical path means वो एक्टिविटी जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, अगर वो 10 दिन में कंप्लीट होनी है तो उन्हें 10 दिन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है. देन अंडर शेड्यूलिंग इट कम्स रीशेड्यूल टू मीट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव. अगर कोई डिले हो गया है, इफ देयर इज एनी डिले इन द शेड्यूल, then we will reschedule the project as per the management objective. In lieu of cost and resource, if it is possible for us to complete the project by increasing the resource and cost, if the company is like not liable, not going through the cost and whatever, then it's not a problem, because in the project the cost is the main. Now comes to the control. Update network with actual progress. इसमें क्या है? अपडेट नेटवर्क विद एक्चुअल प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने स्केड्यूल को अपडेट करते हैं कि एक एक्टिविटी पाइपिंग की थी, पाइप 10 इंच का पाइप वेल्ड होना था, वो
खत्म हुआ एक दिन में। तो जो हमारा प्रोग्रेस आएगा वो अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब हमारे सेशन स्टार्ट होंगे मैकेनिकल के प्राइमवेरा के अंदर। तो वो एक्चुअल प्रोग्रेस कैलकुलेट करेगा और किस तरीके से हम करते हैं उसमें प्राइमवेरा में काम। इवेल्युएट एनालाइज एक्चुअल अगेंस्ट प्लान, एक हमारी बेस लाइन होती है, वो हमारा प्लान कहलाता है प्राइमवेरा के अंदर। द फर्स्ट प्लान, when project manager or project director approves the this project schedule, then there is a plan which is called as the baseline plan. Against that we will calculate our actual progress. If significant variance is observed, then reschedule activities to devise catch up plan. इस बेसलाइन प्लान के अगेंस्ट में अगर कोई एक्टिविटी डिले होती है या जल्दी हो जाती है और उसके बीच में पॉजिटिव वेरिएंस या नेगेटिव वेरिएंस आता है, तो हम उस एक्टिविटी को रीस्केड्यूल करते हैं एक छोटा कैचअप प्लान बना के। कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, लाइक पाइपिंग का ही ले लेते हैं। पाइपिंग में एक 10 इंच का पाइप 11 मीटर लंबा इरेक्ट होना था, वो नहीं हो पाया आज की डेट में। तो उसको फैब्रिकेशन, इरेक्शन, प्री फैब्रिकेशन, इरेक्शन, देन फैब्रिकेशन मींस वेल्डिंग ऑफ द जॉइंट एंड देन क्वालिटी चेक, ये 4 थे 5 एक्टिविटीज हैं। ये कैचअप प्लान के तौर पे हम प्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तब हम किस कैचअप प्लान को बनाएंगे और फिर उसके बाद सबमिट करेंगे और फिर इसी तरीके से हम प्राइमवेरा के अंदर उसको रीस्केड्यूल करेंगे। वो ये कंट्रोल में आती है चीज। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। I think many people know about this. It starts from the initiation part, project initiation, then project planning, then project execution, and then project closure. Under which we will do project definition, detail planning करते हैं, monitoring and control करते हैं साथ ही साथ, ताकि monitoring and control करते टाइम कोई pardon. Yes. This is the life cycle: project initiation, project planning, project execution, project closure. We'll go to the next slide. Types of schedule. Here I have present L1, 2, 3, and 4. Four types of schedule, but we make L5 schedule also, which will be developed by at site by the workers, or I can say staff who are directly linked to the construction part. So this type of schedule, L1 schedule, consists of highest level summary schedule, indicates major project milestones, gives overview of project execution methodology. Highest level summary schedule L1. This L1 schedule, stakeholders, this is the stakeholders schedule. आपको ऐसे समझाता हूँ कि स्टेक होल्डर्स जो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको सिर्फ मेन डेट्स चाहिए होती है कि हमारी किक ऑफ मीटिंग कब होगी, हमारा ये इक्विपमेंट कब इरेक्ट होएगा, हमको ये कमीशनिंग किस दिन मिलेगा। ये सब L1 शेड्यूल में आता है। देन वी गो टू दी L2 शेड्यूल, which we which are the lower level of the L1 schedule, which consists of overall duration of engineering, इंजीनियरिंग की कितनी ड्यूरेशन होगी और उसके अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं। फिर प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या प्रोक्योर करना है, क्या क्या मैन्युफैक्चर करना है। डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्शन फेसेस आर इंडिकेटेड, कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा इक्विपमेंट, पाइप, फिटिंग कब डिलीवरी होगी और किस कंस्ट्रक्शन फेज में उसको दिखाया जाएगा, वो L2 schedule में आएगा। Now L3 schedule again, the bifurcation of L2. Uh, it comes to the working schedule. Here this schedule is a little detailed schedule where we present all the disciplines, all the activities related to the engineering, procurement, construction, and commissioning. Activities of EPC phases are indicated in detailed per item. Now comes to the L4 schedule. This is a detailed working schedule prepared by the people executing activities, used to track day-to-day activities. Whatever I have said, this L4 schedule is made at site, and day-to-day activities are noted here. Then it goes to the head office of the organization, where
L3 स्केड्यूल में उस एक्टिविटीज को की डेट्स को डाला जाता है। फिर एक L5 स्केड्यूल होता है, वो बिल्कुल लोअर लेवल साइट पर बनाया जाता है। वो यहाँ हमने इंडिकेट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक L5 भी होता है। तो स्केड्यूल हमारे L1 से लेकर L5 तक होते हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड। नाउ इट्स the introduction to Primavera. Primavera क्या है? Primavera is a powerful enterprise project management solution for project planning, tracking, controlling, and reporting to ensure successful delivery of complex projects. Used in industries such as EPCM, oil and gas refineries, petrochemicals, chemical industry, high-tech manufacturing industries, logistic and supply chain industries, project-oriented industries, and so on. कहने का मतलब ये है कि प्राइमावेरा किसी भी कहीं भी जगह यूज हो सकता है, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल हो, सोलर इंडस्ट्री हो, थर्मल पावर प्लांट हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज। Nowadays, Primavera, these manufacturing production organizations are using Primavera to have a track of their what is going on in their project. It is invented in 1983 by Joel Koppelman and Dick Ferris, and in 2008, Oracle has taken from them for business purpose. From 2008 onwards, under Oracle, Primavera comes. That's why it is called as Oracle Primavera PC. This project data is stored in a central database and can be accessed via client server and the web. आप अपने लैपटॉप पे भी इसको यूज कर सकते हो, और कहीं आप मान लीजिए ऑन शोर ऑफ शोर या किसी साइट पर हैं, वहां पर भी आप अपने मोबाइल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं. It's not a problem for using Primavera, but the thing is you have an access for the same from the company in which you are working. Now it's organizational breakdown structure. Organizational breakdown structure एक ब्रेकडाउन है एक हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन की, कि सबसे पहले हमारे डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, फिर उसमें उनके नीचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे, प्लानिंग हेड रहेंगे, प्रोक्योरमेंट हेड रहेंगे, एचआर एंड हेड रहेंगे। आप इनको पीएनए भी कह सकते हैं, पर्सनल एंड एडमिन डिपार्टमेंट। एफएनए, फाइनेंस एंड अकाउंट हेड रहेंगे। फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज को टेक केयर करते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को टेक केयर करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होल टेक केयर करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग भी करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैनेजर एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर को असिस्ट भी करते हैं। ऐसे ही प्लानिंग हेड के अंदर टीम होती है, प्रोक्योरमेंट हेड की भी टीम होती है, एचआर एडमिन की भी टीम रहेगी, वो एचओ टीम भी रहेगी और साइट टीम भी रहेगी। ऐसे ही फाइनेंस एंड अकाउंट्स की भी टीम रहती है। तो ये इस तरीके से हमारा ओबीएस चलता है, इसे हम ओबीएस कहते हैं प्राइमरी की भाषा में, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। Now we go ahead. This is work breakdown structure, WBS. It's a systematic and logical breakdown of the project into project activities, which are further divided into sub-activities till breakdown is done in terms of managerial and controllable unit of work, and for which responsibility can be defined. I'll show you what exactly the WBS is. Just wait. See, this is the WBS. ये ऑयल एंड गैस है, इसमें हम माइलस्टोन रखते हैं। माइलस्टोन के अंडर में एक प्रोजेक्ट माइलस्टोन और WBS रहेगा, फिर इंटरफेसेस रहेंगे, देन लाइसेंसर डॉक्यूमेंट रहेगा, रेजिडुअल बेसिक इंजीनियरिंग, डिटेल इंजीनियरिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोसेस, इक्विपमेंट एंड दिस इक्विपमेंट, देन rotary and package equipment further subdivided WBS rotary and package equipment, then piping. These all other are the areas like this. Uh, we called it as a WBS, right? So the project is the highest level of the WBS project. हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल रहता है ये, जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। जैसे मैंने ये ऑयल एंड गैस बना रखा है अभी आपको शो करने के लिए। मैं इसको यहाँ पे करके ओपन करूंगा तो ये खुलेगा, एक्टिविटीज या WBS खुलेगा इस तरीके से। इसलिए कहा गया है WBS का सबसे हाईएस्ट लेवल प्रोजेक्ट होता है। पहले प्रोजेक्ट बनाया जाता है,
फिर उसकी ड्यूरेशन तय होती है। देन ईच प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक WBS हायरार्की। प्रोजेक्ट की एक WBS हायरार्की होती है अलग। वो हायरार्की मैंने आपको दिखाई, सबसे पहले इंजीनियरिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, सॉरी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल कंप्लीशन और प्री कमीशनिंग एंड देन कमीशनिंग। This is the WBS underline. Then activities are the fundamental work elements of a project. They are the smallest subdivision of a project, so they are lowest level of WBS. एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने कहा गया है कि WBS की सबसे लोएस्ट जो लेवल है वो है एक्टिविटीज, जो हम काम करते हैं साइट पर, वो सबसे लोएस्ट लेवल रहता है हमारा। Each activity should be identifiable, quantifiable and should have definite start and finish. हर एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस डिसिप्लिन की एक्टिविटी है, उसमें होगा क्या। क्वांटिफाई करते हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए पाइपिंग है तो पाइप में कितना इंच डाया है, कितना इंच मीटर है, या स्टील स्ट्रक्चर है तो कितना मेट्रिक टन है, और उसकी कितनी क्या स्टार्ट और फिनिश डेट होगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आता है। देन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन टू ऑयल एंड गैस रिफाइनरी केमिकल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। मैं आपको एक सैंपल एग्जाम्पल के तौर पर एक ये चीज समझाऊंगा कि हमने एक एग्जांपल लिया है अदानी ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट। अदानी इज सेटिंग अप 1 mm TPA PVC plant in Mundra, Gujarat. I think if most of the people who are working in the field may know, in Mundra, Gujarat, अदानी ने अपना 1 mm TPA का प्लांट शुरू किया है। ये प्लांट टोटल पाइल पर है, क्योंकि वो सी एरिया है, और टोटल प्लांट पाइल पर बेस्ड है, पाइलिंग पे, पाइलिंग इन पाइल के, राइट। तो इस ऑयल एंड गैस में क्या होता है, जब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज इन सब में, केमिकल प्लांट्स में क्या क्या करते हैं। तो इसमें ओनर जो होता है वो हायर करता है PMC को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, EPCM, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, टू मेक डिजाइन ऑफ देयर प्लांट, and people of different disciplines like civil, mechanical, instrumentation, electrical, piping, equipment, HSE, which contributes their knowledge in the field of engineering, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग, एंड रिजल्ट्स इन मेकिंग ऑफ प्लान फॉर स्टेक होल्डर्स। मतलब ओनर्स और क्लाइंट्स के लिए अपनी नॉलेज को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डाल के, प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर डाल के उस प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, और उस प्लांट को बनाया जाता है। एंड अंडर दिस ऑयल एंड गैस और केमिकल इंडस्ट्री और रिफाइनरी, मैकेनिकल वर्क्स विच कंसिस्ट ऑफ प्लॉट प्लान, यूनिट प्लॉट प्लान, एक हमारा प्लॉट एरिया होगा, उस प्लॉट एरिया में काफी सारे यूनिट्स होंगे। उन पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए ये अदानी का ग्रीन, हेलो, ये मैकेनिकल वर्क्स जो है विच कंसिस्ट ऑफ प्लॉट प्लान, यूनिट प्लॉट प्लान। जैसे इसमें यूनिट, इसमें काफी सारी यूनिट्स हैं, पीवीसी यूनिट्स हैं, एंड VCM यूनिट है, कैल्शियम कार्बाइड प्लांट है। तो अलग अलग यूनिट प्लॉट प्लान्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन, इक्विपमेंट फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन, मैकेनिकल के अंदर ये सब काम आते हैं। पाइपिंग स्कूल फैब्रिकेशन इरेक्शन, UG एंड AG पाइपिंग इरेक्शन, पाइपिंग सपोर्ट फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन, पाइपिंग सपोर्ट जो पाइप के नीचे लगती है, चाहे वो AG पाइपिंग में हो, AG पाइपिंग में लगती है ज़्यादातर वो क्योंकि UG पाइपिंग में नीचे पैड्स लगते हैं, या फिर रेत से भरे कट्टे लगते हैं, विच विल बी टेकन केयर बाय मैकेनिकल डिसिप्लिन, अंडर विच PM सेग्रीगेट्स। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इन सभी जो ऊपर मेंशन वर्क हैं इनको सेग्रीगेट करता है टीम वाइज, की someone will take care of the structure fabrication erection, there was a team, and then school fabrication team, support fabrication team, UG and AG piping fabrication and erection team, equipment fabrication and erection team. This all work comes into the oil and gas, refinery and chemical industry. Now we go to the next slide. This basic equipment used in oil and gas are static, rotary, and package equipments, wherein static consists of CS vessels. This is an example I'm taking. There are so many static equipments. A few I have listed out: the CS vessels, carbon steel vessels, stainless steel vessels, column, heat exchangers, tanks, etc. Rotary consists of agitator, pumps, blower, waste gas treatment unit, elevator, overhead crane, etc. स्टैटिक मीन्स जो खड़े हैं, जो बिल्कुल स्टैंड बाय है। रोटरी जो
घूमते हैं, इसीलिए वो एजिटेटर है, वो भी रोटेट करेगा। पंप भी में मोटर होती है, ब्लोअर में भी मोटर होती है, वेस्ट गैस ट्रीटमेंट यूनिट में भी होती है, एलिवेटर मूवेबल होता है, ओवरहेड क्रेन में भी मोटर होती है और मूवेबल होता है, इसीलिए रोटरी में आता है। पैकेज कंसिस्ट ऑफ स्किड विच मीन्स अ स्मॉल प्लांट। स्किड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ये स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा पूरा प्लांट बना होता है। स्किड विच मीन्स अ स्मॉल प्लांट विच इज माउंटेड ऑन अ स्ट्रक्चर and is manufactured and delivered by vendor to project site। ओनर या क्लाइंट इस प्रोडक्ट को जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है रेफ्रिजरेशन यूनिट, नाइट्रोजन प्लांट, कंप्रेसर यूनिट। ये पूरा पूरा रेफ्रिजरेशन यूनिट जिसके अंदर कंप्रेसर आएगा, कंप्रेसर का ल्यूबॉयल सिस्टम आएगा, और अलग अलग रेफ्रिजरेशन यूनिट के अंदर अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सब आएंगे। वो एक प्लेटफॉर्म पर पहले से ही फिक्स्ड आते हैं मैन्युफैक्चरर के यहाँ से बन के, वो शिफ्ट होते हैं वाया सी और वाया बिग ट्रक्स, बिग ट्रेलर्स। तो इसीलिए हमने इसे स्किड कहा गया, बस जिसको हम पैकेज कहते हैं। And the most important and critical part of oil and gas is processing, process piping, utility piping, etc. which consist of AG and UG piping। किसी प्लांट के अंदर पाइपिंग करना, किसी यूनिट के अंदर पाइपिंग करने को प्रोसेस पाइपिंग कहते हैं। यूटिलिटी पाइपिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर की पाइपिंग हो गई, वाटर हो गई, कूलिंग वाटर की, फायर वाटर की पाइपिंग हो गई, ये सब होती है यूटिलिटी में। और ये Excuse me, sir. यस, यस प्लीज। Sorry to interrupt you, sir. Sir, PPT is not visible actually. इट्स नॉट विजिबल। No, sir. PPT is not visible. Only Primavera is visible. वेट, इज इट विजिबल नाउ? No, sir. Not yet. नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. Now it's visible. Thank you, sir. Shall I start from here? Yeah, it will be good, sir, to quick recall. ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तक हो गया था ना? यहाँ Yes. तक तो दिखी थी, यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट? Yeah, yeah. फाइन, नो इशू। थैंक Thank यू you. वेरी मच फॉर टेलिंग मी। इंट्रोडक्शन टू ऑयल एंड गैस रिफाइनरी केमिकल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है अदानी की ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट का। अदानी अपना ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट बना रहा है मुंद्रा गुजरात में। तो और ये 1 MMTPA क्या है? MMTPA मीन्स मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। मतलब एक साल में 1 मिलियन मेट्रिक टन, 10 लाख मेट्रिक टन पीवीसी वो मैन्युफैक्चर करेगा। इसीलिए उस प्लांट को बनाया जा रहा है। इसके अंदर काफी यूनिट है। इसके अंदर पीवीसी यूनिट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वीसीएम यूनिट है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, जो कि पीवीसी का फीड है। वीसीएम पीवीसी के अंदर जाएगा तो पीवीसी बनेगा, और भी कंपाउंड भी केमिकल्स हैं इसके साथ मिलेंगे। और कैल्शियम कार्बाइड यूनिट है, सेमी कोक यूनिट है, एसिटिलीन यूनिट है। ये सब यूनिट इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हमें पीवीसी को फीड दिया जाए पीवीसी को बनने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है? ओनर हायर्स पीएमसी, ईपीसीएम एंड पीपल ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, electrical piping equipment HSE, which contributes their knowledge in the field of engineering, procurement, construction, commissioning, and results in making a plant for stakeholders। मतलब ओनर या क्लाइंट जो होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर करेगा अपने काम को कराने के लिए। ईपीसीएम एजेंसी, एंटरप्राइज, ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनीज हायर करेंगी जो डिजाइन करती हैं प्लांट्स को। और अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को हायर करेगी ताकि उनकी नॉलेज को लेके अपना ईपीसीसी को अंजाम दिया जाए, किसी प्लांट को बनाया जाए इन सबको लेके। नेक्स्ट कम्स अंडर ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज एंड केमिकल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट इन मैकेनिकल वर्क्स, इट कम्स प्लॉट प्लान और यूनिट प्लॉट प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया इस 1 MMTPA के प्लांट में अलग अलग यूनिट्स हैं, पीवीसी, वीसीएम, कैल्शियम क्लोराइड, सेमी कोक, एटसेट्रा। तो हमने पीवीसी यूनिट को लेके करते हैं तो वो यूनिट प्लॉट प्लान कहलाता है किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का, छोटा प्लांट। तो उसमें स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन इरेक्शन वर्क्स होता है, इक्विपमेंट फैब्रिकेशन इरेक्शन होता है, पाइपिंग स्पूल फैब्रिकेशन इरेक्शन जॉब होती है, यूजी एंड एजी पाइपिंग इरेक्शन, पाइपिंग सपोर्ट फैब्रिकेशन जो एजी पाइपिंग के अंदर पाइपिंग सपोर्ट लगाई जाती है वो होती है। अगर हम बात करें किसी को पता हो यहाँ पर तो आईओसीएल की जैसे S1, S2, S3, S4 सपोर्ट्स होती हैं, वो उस तरीके की सपोर्ट्स को लगाया जाता है एजी पाइपिंग में। और भी सपोर्ट्स होती हैं, हैंगिंग सपोर्ट होती है, हैंगर्स होते हैं, वो इरेक्ट होते हैं। पहले फैब्रिकेट किया जाता है फिर इरेक्शन किया जाता है उनका।
which will be taken care by mechanical discipline under which PM segregates work team wise. जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इस प्रोजेक्ट का, वो टीम वाइज ऊपर के काम को सेग्रीगेट करता है कि स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ये टीम करेगी, स्पूल फैब्रिकेशन वो बनाएगा। स्पूल मतलब पाइप के छोटे पार्ट, स्पूल जो कि इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए साइट पर जाने के लिए, जो 6 मीटर तक के होते हैं या मैक्सिमम 10 मीटर, 11 मीटर तक के, 11.7 मीटर का एक पाइप होता है, जो मैंने अपने उसमें देख करा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उतना तक स्पूल बना सकते हैं हम। देन सपोर्ट फैब्रिकेशन होता है, यूजी एजी पाइपिंग फैब्रिकेशन इरेक्शन होती है, इक्विपमेंट फैब्रिकेशन इरेक्शन टीम होती है। ये अलग अलग टीम होती हैं, ये मिलके आपस में काम करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और फिर किसी को वर्क को अंजाम देती है। इस तरीके से वी आर executing our job for making plant. Now next slide. Now oil and gas refineries and chemical industry project के अंदर कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं ऑयल एंड गैस में, जैसे स्टैटिक हो गया, रोटरी हो गया, पैकेज इक्विपमेंट्स हो गए, जिसमें स्टैटिक कंसिस्ट ऑफ CS वेसल्स, कार्बन स्टील वेसल्स हो गए, स्टेनलेस स्टील वेसल्स हो गए, कॉलम हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, टैंक्स हो गए, एक्सेट्रा, जिसमें केमिकल्स जाते हैं, स्टोर होते हैं, जो स्टैंड बाय रहते हैं, स्टोर हुए हुए रहते हैं, वो सब स्टैटिक कहलाते हैं। रोटरी मूवेबल आइटम्स, जैसे इसमें मोटर लगी होती है, जैसे एजिटेटर हो गया, pumps, blowers, waste gas treatment unit, elevators, overhead crane, etc. All these comes into the rotary. And then it comes to the package. Package consists of a skid, which means a small plant. ये skid का मतलब होता है किसी पूरे एक स्ट्रक्चर होता है स्टील का नीचे, उसके ऊपर पूरा पूरा प्लांट सेटअप होता है, और जो कि वेंडर मैन्युफैक्चरर से ही बन के आता है साइट पर। सीधे लिखा है हमने, skid which means a small plant which is mounted on a structure and is manufactured and delivered by a vendor to project site. जैसे एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेशन यूनिट का। रेफ्रिजरेशन यूनिट के अंदर कंप्रेसर होता है, ल्यूब ऑयल सिस्टम होता है, उसकी मोटर होती है, और भी अदर यूनिट्स होते हैं, उसका टैंक होता है, ये रेफ्रिजरेट स्टोर करने का। नाइट्रोजन प्लांट कंप्रेसर यूनिट होती है, ये भी इसी की तरह सेम है, कंप्रेसर, कंप्रेसर के साथ ल्यूब ऑयल सिस्टम, मोटर, ये होते हैं। तो इसको हम स्किड कहते हैं। ये एक स्मॉल छोटा प्लांट रहता है, ये एज इट इज आता है और सीधा सीधा इरेक्शन हो जाता है साइड पर जाकर। फिर उसके बाद उसमें टाइन्स होते हैं पाइपिंग के, या कनेक्शंस होते हैं, आप कह दें। Now, the most important and the critical part of oil and gas is piping, whether it is process piping, utility piping or whatever. ये पाइपिंग ही एक ऐसी चीज है जो किसी इक्विपमेंट को किसी टैंक से, या किसी इक्विपमेंट को किसी कॉलम से, या किसी इक्विपमेंट को सी एरिया से, जेटी से, जहां से भी वो केमिकल आना है, जोड़ती है। प्लांट के अंदर की पाइपिंग को प्रोसेस पाइपिंग कहते हैं, और अदर यूटिलिटी पाइपिंग जैसे कि फायर वाटर पाइपिंग हो गई, कूलिंग वाटर हो गया, डिसैलिनेशन वाटर हो गया, वो यूटिलिटी पाइपिंग इन सब में आती है। ये बिग बोर भी होती है, प्रोसेस पाइपिंग स्मॉल बोर की भी होती है, अप टू 10 इंचेस भी रहती है, यूटिलिटी पाइपिंग अप टू 48 इंचेस भी रहती है, ऐसा। विच कंसिस्ट ऑफ AG एंड UG। AG अबव ग्राउंड पाइपिंग एंड UG इज अंडरग्राउंड पाइपिंग, दोनों में आती है। ये हमारा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था ऑयल एंड गैस के लिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको एक LNG प्रोजेक्ट का बताता हूँ, जो कि एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, ये इस समय काफ़ी बूमिंग है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पेट्रोनेट LNG का। पेट्रोनेट एक कंपनी है, दहेज में इसका प्रोजेक्ट चलता है। इनकी टॉप साइड फैसिलिटीज ऑफ जेटी मतलब मैकेनिकल वर्क। टॉप साइड मीन्स समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर जो हम काम करते हैं उसे टॉप साइड फैसिलिटीज कहते हैं। इस ये भी सेम है, इसमें भी ओनर PMC EPCM, इसमें एक एडिशन आ जाता है मरीन फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर। ये मरीन फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये लैंड को रिक्लेम करता है, रिक्लेम इनटू से पाइलिंग करता है समुद्र के अंदर। उनका प्रोसेस होता है, सबसे पहले वो क्या नाम है, पानी को हटाते हैं, उसमें फिर उसके बाद उसमें पाइल बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको कहते हैं हम ट्रेसल। मान लीजिए अभी मैं इसके इस भाषा में कहता हूँ इसको, इसमें ऑनशोर एंड ऑफशोर कहते हैं इसे। ऑनशोर मतलब लैंड पे, एंड ऑफशोर मतलब समुंदर में, सी में, बीच में कहीं, जिसको जेटी भी कहते हैं हम कहीं कहीं। तो ये क्या करता है, लैंड जहां पर प्लांट होगा वहां से पाइपलाइन को जेटी तक लेके जाएगा। जेटी एक एरिया होता है जो कि समुद्र के बीच में बनाया जाता है, वहां पर शिप आती है मटेरियल लेके, LNG लेके आती है, वो पाइपलाइन के थ्रू प्लांट के अंदर लाते हैं।
इसीलिए मरीन फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है कि ये वहां से वहां तक की रोड बनाता है, पहले पाइलिंग करता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर रोड बनाता है, और उसके ऊपर फिर टॉप साइड फैसिलिटीज मतलब मैकेनिकल वर्क स्टार्ट होता है, पाइपलाइन का या छोटा कोई इक्विपमेंट इरेक्शन का तो ऑन शोर ही होता है। ऑफ शोर पे सारा पाइपलाइन वर्क होता है, एंड रिलेटेड टू दैट इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क्स इज आल्सो देयर। सब स्टेशन बिल्डिंग बनती है और कंट्रोल रूम बनता है, ये सब चीजें आती हैं मैकेनिकल पार्ट के अंदर और सिविल पार्ट के अंदर। तो इसमें सिविल मैकेनिकल सभी का काम रहता है, इसमें भी सिविल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल पाइपिंग इक्विपमेंट एचईसी which contributes their knowledge in the field of EPC CC which results in the erection of pipeline on the trestle जो ऑन शोर से ऑफ शोर तक रोड बनाई गई है पाइल के ऊपर, तो ट्रेसल कहते हैं हम। उसके ऊपर स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर पाइपलाइन आएगी। in an offshore on sea erection of equipment at offshore jetty area for stakeholders। जो जेटी एरिया होता है वहां पर भी कुछ इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे आपको मैं सेकंड उसमें बताता हूँ। मैकेनिकल वर्क अंडर एलएनजी, मैकेनिकल वर्क दिस अंडर मैकेनिकल वर्क विच कंसिस्ट ऑफ यूनिट प्लॉट प्लान, स्टील स्ट्रक्चरल इरेक्शन, इक्विपमेंट इरेक्शन जिसमें अनलोडिंग आर्म आता है। जेटी एरिया में एक अनलोडिंग आर्म होता है जो कि शिप के अंदर उसको कनेक्ट करते हैं, शिप से केमिकल या एलएनजी उस लोडिंग अनलोडिंग आर्म के थ्रू पाइपलाइन में जाती है, और वो फिर सीधे प्लांट जो कि ऑन शोर है वहां पर जाती है। एलएनजी ड्रेन पंप होता है, वेसल होता है, स्टैक होता है। इसमें भी पाइपिंग स्पूल फैब्रिकेशन, एजी पाइपिंग फैब्रिकेशन रहता है, यूजी नहीं रहता है इसमें, क्योंकि समुंदर के ऊपर सी के ऊपर काम चल रहा है सारा ये। इसमें पाइपिंग सपोर्ट होती है, जो कि मैकेनिकल डिसिप्लिन टेक केयर करता है, और पीएम सेग्रीगेट करता है टीम वाइज, जैसा कि हमने ऑयल एंड गैस में बात की। तो ये हमारे दो एग्जांपल थे, एक अदानी ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट का और एक पेट्रोनेट एलएनजी प्रोजेक्ट का। नाउ दिस इज द प्राइमवेरा कंटेंट। today's demonstration consists of this content। ये जो पहले मैंने आपको बताया, दिस वाज द इंट्रोडक्शन दैट कि हम अपने फील्ड में, जैसे ऑयल एंड गैस फील्ड हो गया या फिर केमिकल प्लांट हो गया, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, वट एवर हम उसमें करेंगे क्या क्या काम रहेगा मैकेनिकल को। और अब ये उसको देखते हुए हम प्राइमवेरा में क्या क्या चीजें होती हैं जो हम क्रिएट। नाउ इट्स इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज ऑलरेडी डन। इंट्रोडक्शन टू प्राइमवेरा P6 सॉफ्टवेयर, वो भी मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था। फिर ईपीएस क्रिएशन, ये ईपीएस होता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये जब हम प्राइमवेरा पे काम करेंगे उस समय मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा। ईपीएस एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन का एक ईपीएस क्रिएट होता है, फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सेकंड थर्ड फोर्थ स्लाइड में बताया था। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब ईपीएस के अंदर जो प्रोजेक्ट बने होंगे वो कौन करेगा, उस बंदे का नाम क्या होगा, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा, वो सब वो भी इसमें आएगा। फिर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कि हमको क्या बनाना है, जैसे ऑयल एंड गैस का तो हमने ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। फिर डब्ल्यूबीएस क्रिएट करेंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसके अंदर। ये सब स्टेप्स हैं प्राइमवेरा में, कि पहले ईपीएस, फिर ओबीएस, फिर प्रोजेक्ट, फिर डब्ल्यूबीएस, फिर हम कैलेंडर बनाएंगे कि कैलेंडर 5 डेज रखना है, वीक 6 डेज रखना है, वीक या 7 डेज रखना है। बेसिकली 5 डेज होता है जो डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, 6 डेज होता है जो कंस्ट्रक्शन पे काम होता है, और 7 डेज होता है जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे काम होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कभी रुकती नहीं, वो 7 डेज काम करती है, 7 डेज और थ्री शिफ्ट्स में। फिर उसके बाद हम एक्टिविटीज बनाएंगे कि हमारी एक्टिविटीज क्या है। अभी मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जस्ट आप ये गो थ्रू कर लीजिए एक बार। एक्टिविटीज, टास्क क्रिएशन, टास्क वही एक्टिविटीज कहलाती है, वही टास्क कहलाती है। रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, जैसे फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, एफएफ, एफएस, एसएस और एसएस, स्टार्ट टू फिनिश। वो कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग होती है, स्केड्यूल करते हैं, ये सब बनाने के बाद ड्यूरेशन डालने के बाद हम प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करते हैं। जब स्केड्यूल करेंगे तो हमारे पास फिनिश डेट आती है और क्रिटिकल पाथ आता है, राइट। फिर हम कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं प्राइमवेरा के अंदर जो एक्टिविटीज में लगाए जाते हैं, जैसे फिनिश माइलस्टोन, स्टार्ट माइलस्टोन, और भी होते हैं। रोल्स एंड रिसोर्स क्रिएशन होता है, क्या क्या रोल होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर का रोल होगा, क्वालिटी इंजीनियर का रोल होगा। रिसोर्स बनाई जाएगी, लेबर, नॉन लेबर और मटेरियल अलग अलग रिसोर्स में। जैसे मैकेनिकल में वेल्डर हो गया, मेसन हो गया, सॉरी वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, गैस कटर हो गया, ग्राइंडर हो गया,
और इरेक्शन के लिए रिगर्स हो गए, ये सब रिसोर्स में आते हैं। और ये एक्टिविटीज में असाइन करेंगे, उसमें असाइनिंग रिसोर्सेज, देन प्रोजेक्ट कोड्स आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे को प्राइमवेरा में देखना है कि नहीं, मुझे तो भुवनेश्वर का प्रोजेक्ट चाहिए, तो भुवनेश्वर का एक प्रोजेक्ट बना होगा एग्जाम्पल B1 से करके, तो मैं प्राइमवेरा में फिल्टर लगाऊंगा, प्रोजेक्ट कोड लगा हुआ होगा, उससे फिल्टर लगाऊंगा कि मुझे B1 के सारे प्रोजेक्ट दिखा दो, तो वो प्रोजेक्ट कोड दिखा देगा। इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। एक्टिविटी कोड भी होता है, वो भी क्रिएट करेंगे। फिर रिसोर्स एनालिसिस एंड लेवलिंग होगी। रिसोर्स एनालाइज, जो भी हमने ऊपर रिसोर्स डाली है, उसकी कॉस्ट डाली है, वो प्राइमवेरा एनालाइज करता है और उसको फिर लेवल करता है। लेवल मीन टू से लेवल मीन टू से कि कोई रिसोर्स कहीं पर ज्यादा काम तो नहीं कर रही है, क्या पता 8 घंटे से ज्यादा काम कर रही हो, क्योंकि बेसिकली हमारा 8 आवर्स वर्किंग रहती है। तो 8 आवर से कहीं वो 10 आवर वर्किंग ना कर रही हो, तो हम जब लेवल करेंगे तो वो जो 10 आवर वर्किंग कर रही होगी वो 8 आवर ऑटोमेटिकली ला देगा और उस 2 घंटे को किसी और मैन पावर में शिफ्ट कर देगा। वो हमारा काम रहता है, हम उसे किस तरीके से करें। देन बेसलाइन एप्लीकेशन क्रिएशन, बेसलाइन बनाते हैं हम। फर्स्ट बेसलाइन मतलब प्रोजेक्ट प्लान फिक्स्ड, जो हमारा ओनर से हमको एक माइलस्टोन डेट दी गई होगी कि हमको ये प्रोजेक्ट इस तारीख को खत्म करना है, तो वो एक एप्लीकेशन क्रिएशन हो जाता है। फिर अपडेटिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अप करते हैं। फिर उसको ट्रैक करते हैं हम हफ्ता, बेसिकली 7 डेज में ट्रैक होती है प्रोग्रेस, हर एवरी 7 डेज। कुछ कंपनीज 15 डेज में ट्रैक करती है, कुछ कंपनीज मंथ में ट्रैक करती हैं, ज़्यादातर 7 डेज में ही करती हैं, क्योंकि फिर डिले होने के चांसेस रहते हैं इस वजह से। डॉक्यूमेंट्स, नोटबुक एंड फीडबैक क्रिएट करेंगे हम। मान लीजिए किसी एक्टिविटी में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एक स्कूल शीट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वो हम अटैच करते हैं। इश्यूज एंड थ्रेशोल्ड क्रिएशन है। इश्यूज एंड थ्रेशोल्ड क्रिएशन वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैंने भी अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है। बट हाँ, फिर भी हमने एक डाल रखा है कि हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फील्ड होता है कि किस तरीके से फिल्टर लगेगा, किस तरीके से देखा जाएगा प्राइमवेरा के फील्ड्स को। और फिर रिपोर्ट जनरेट करेंगे हम, उसकी रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं, क्लाइंट को किस तरीके से दिया जाता है, कैसे प्रिंट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। प्राइमवेरा प्राइमवेरा को एक्सेल शीट में भी इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सेल से एक्सेल को प्राइमवेरा में भी डाल सकते हैं। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखेंगे। एडमिन प्रेफरेंसेस सीखेंगे, एडमिन कैटेगरी सीखेंगे। ये वैसे तो फिक्स्ड रहती हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमको करेंसी बनाना रहता है कि ये इंडियन रुपीस में काम होगा या फिर US डॉलर्स में काम होगा, वो सब इसमें आता है। फिर वर्किंग विद लेआउट्स, कि हमको किस तरीके से अपने प्राइमवेरा जो हम देखते हैं, जैसे कि आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक मिनट, जस्ट वेट, आई शेयर प्राइमवेरा स्क्रीन। प्राइमवेरा, थैंक यू सर। जस्ट वेट। इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? प्राइमवेरा स्क्रीन? Yes. हाँ, Yes, sir. जस्ट लेआउट होते हैं। जैसे हमारा ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हमको एक्टिविटी आईडी रखनी है, फिर एक्टिविटी नेम रखना है, ओरिजिनल स्टार्ट रखनी है पहले, फिर स्टार्ट फिनिश रखनी है, और भी काफ़ी सारे कॉलम्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये रहे, ये सभी कॉलम्स हैं। सो मैनी कॉलम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द कंपनी नीड्स। वी विल इंसर्ट दिस हेयर एंड देन वी विल गो अहेड टू स्टार्ट अवर वर्क। दिस इज कॉल्ड एज द लेआउट। तो एज एन एग्जांपल यू कैन सी दिस डब्ल्यू बी एस के अंदर हमने जब एक्टिविटीज डाली, तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। ये सब डब्ल्यू बी एस है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो इसमें एक्टिविटीज आ जाएंगी, ये देखिए, ये सब एक्टिविटीज रहेंगी। दिस लाइसेंस डॉक्यूमेंट हैंड ओवर टू कॉन्ट्रैक्टर, रेजिडुअल बेसिक इंजीनियरिंग, डिटेल इंजीनियरिंग, उसके अंदर प्रोसेस आता है, फिर उसमें कितनी सारी एक्टिविटीज रहती हैं। ये सब ये लाइव प्रोजेक्ट है एक। इस तरीके से हमारा ये चलता है।
So, guys, this is all about this demo session. What we have learned here. Thank you very much. If there are any questions, queries, then you may ask. Excuse me, So sir. I have Hi. yes. Yeah, sir. I just want to know that are you going to teach us how we can use AI for Primavera 6 or no? No. So, is there any option available that we are going to use AI for Primavera? At present, I have not worked on that, but maybe it may be available. It may be available. Okay. Yes. I think it is available with the Chat GPT. Maybe. Yeah. Yes, I need to check it Yeah, out. ChatGPT is a different thing, but yeah, on the So other side, if you'll see that actually, if you will write MS, if you will write a query to the Chat GPT to provide me the code for that, the Chat GPT will provide you a code. You can paste it in Primavera, and you will get that. this is for all. Anything you can write it, they'll give you the answer. But the thing is that just like Microsoft, all tools, softwares, they have the option for the Copilot. So you can just type it and they'll give you the answer and they'll prepare for you everything. And no need to So it go is to the chat GPT and did Microsoft that. also giving you the same thing, no? Ultimately, you are writing the Okay. queries, and they will give you the answers, and then after you are putting the formula to the Excel cell, then it will then only then it will give you the result. It is not automatic. Okay. That's fine. Hello, sir. Thank you. Sir, one more thing, sir. Any industrial project worked out schedule for reference we can get, sir, with detailed one. Sir, I have already gave you the example of the current live project, industry project like chemical No, sir. industry What I'm project. suggesting, current project. One second, sir. Sorry for interruption. Current project, you unable to share some issues will be there. Any completed project, one short project or small project, if you have some detailed workout, we can study for industrial things because I am not an industrial person, so I am from civil field. Okay. So I want to know the industrial background. Sir, your voice is breaking. That's why, sir. Actually, I am from industrial, Again, not an you industrial background. So I am from civil background. you are not from the So, industrial background. so I You want are to you know are that industrial project something how they like that. you are from the civil side, right? Yes, sir. Residential, majorly I work in residential. Yes, sir. Yes, sir. So you want the activities related. Some reference industrial project, any old completed project also for some study purpose. Then after some time next seminar you can conduct. That time we can just When it will be clarify conducted, then see, Mr. Janardhan, when it will be conducted, then ProTraining will inform you a regarding few the same. things if for upgrading the primer Yes, I told you when it will be conducted project in the complete. yes, in the next session, ProTrainee will give you ProTrainee will inform you regarding the same, or it will post on the LinkedIn. Right, Ashish? Are you there? I think Ashish is not there. No issue. Anything else? Yeah, I have a question, sir. Yes. Actually, I believe whatever we are going is not going to be free of cost. But what is your structure? What you are going to plan for that? Like how will you give us the trainings and all? Like what is the structure which you have planned, The and structure is what will be the see cost for this that? see this is the Primavera content. The cost is to be decided by ProTrainee itself. I will train Okay. you regarding the Primavera and the structure for giving the training of Primavera is this. The content is more or less, I will add something more to this content, but it goes like this. First of all, this EPAs and OVAs and project creation. Step by step, I'll make you learn uh, like I am doing at present lively because I understand that. I have made 2, 3 schedules right now in my current organization.
So I got it. the schedule which I show you in on Primavera right now is made by me itself. Okay, so the training you are providing us, and will it be a certificate program, or how would it be? It will be a certificate program. I think Ashish from Protrani, he's from the operation side. He will guide you everything about it. Ashish, are you there? Yes, sir. So accordingly, the campuses Good will evening, be there. everyone. So the classes will be on Zoom. This time only around 9 to 9:30 or like 8:30. The schedule will be said later on, and the courses will be provided via recordings will be provided via Google Drive. And after completion of all the assignment given throughout the sessions, you all will get a certificate. And what about the campus? Like if a Yes, person sir. is fresher, then Sir, I didn't get it. What is it? no. My concern is if a person, suppose I am a fresher, then how would I get the job? Yes, sir. So I need to go for someone else, so or Get you the will job. help me in that. Yeah. So there If is a I'm group getting a of certificate ours. and by paying some amount, no. So we can try, but not sure. We Okay, can got help it. them out if anything Yeah, comes this up, is what. This is what. because we have a community group in which the time jobs are coming. So, I understand. Ashish, there is one question from my end. Hi, this side, Yes, Deepak, sir. this side. So, as you mentioned that you guys will provide us the Google Drive recorded session, okay, in the drive. Yes, sir. So, how you are planning to provide us the software version? So, you are going to provide any kind of crack, because as per my understanding, installing Primavera is not allowable until you pay or receive the license. If I'm wrong, No, sir. sir, can you please correct, Sagar sir? Sir, actually, the Uh-huh. Primavera software is free, and you can download it and install it. You don't have to buy a It's the genuine version educational or the version is any kind free. of license. Yes, sir. So educational version is free, now only. Sir, I didn't get you. Your voice is cracking a bit. So, Gaurav, we can download that from where? Direct from the Oracle site. Direct from Oracle, yeah. Yes, sir. Yes, sir. You can. And we will share you the link also in the group if you join. That will be great. So, can you please share with us what are the fee structure for this course? So, Prox or tentative amount. So it will be help us all to get a brief idea. So we will prepare for that. Thank you. Ashish, can we conclude the session? Ashish, hello. hello. Sir, am I audible? Yes, yes. Yes. I'm saying, can we conclude the session? Yes, sir. Dear learners, those who have any kind of doubt or queries, they can share your name and number in the group, in the chat box. I will contact you after the session. And yeah, thank you, Sagar sir, for the Thank session. you, Ashish. Thank you all. Thank you, Thank you everyone, again. Thank you. for attending. Thank you so much, sir. Please give your name and number in the chat box. If no one going, if no one is going to write anything, then we can conclude. Okay, Darshan Varia.
Thank you, everyone. Have a good